तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, मेरी जान के सजदे में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, ओरी हारी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी। Very good morning to all of you. I think it's incredible that you have come in such inclement weather to Delhi. Delhi never thought it will give you this kind of a welcome. I think when they were planning it, it just so happened that it's become so cold and chilly suddenly. And Jammu and Kashmir and Punjab and Haryana and Delhi can handle it, but not Telangana or Aurangabad, Andhra Pradesh, and that would be it would be a tough call. But here we are, and it's marvelous to see your enthusiasm for the game, and that you have come as a commitment to play. It's very creditable. It's just not about playing sports on the field. It's a sportsmanship spirit that is so important, and the camaraderie, the bonhomie, the love and affection that you develop with each other and your respective teams, the competitive spirit, it's really very creditable. I would not like to be partial by saying that may Delhi win or Telangana and Andhra, where they have a special place in my heart. But may the best team win and carry the laurels with them. I can only hope that the next time the team that wins is the host team for the next match that happens on an annual basis, as I understand, and in better weather. December would be good for any part of our country, irrespective of how warm it is, whether it is Rajasthan or it is Aurangabad or it is UP. December is the best. Of course, Andhra and Telangana can boast of that too. So we hope that all of you meet on a different ground, in a different environment, and keep the spirit up. It's really a pleasure to have come here. I'm freezing. I don't know how you all are going to play on the field, but that's how the game goes, and you'll get warmer as you go on the field. We know that. So, best wishes. May you continue to keep the spirit going and your sportsmanship spirit. Thank you. You know, when the officials of the High Court had come to invite me for this tournament, I immediately accepted, jumped on the offer. For the simple reason, I see myself in each one of you. This I say so, in similar conditions when I was a small boy, I was only on the playground and playing cricket. And not only cricket, all other sports also. So that was the enthusiasm, the zeal, and it's really important, and I really appreciate that all of you maintain that kind of a zeal. And in fact, the participants from Madras, Andhra and Telangana have come and playing in this weather. It's really creditable. That shows a lot of zeal in them. I must congratulate the Delhi High Court Employees Association, Mr. Lauren, who has set a trend, followed now by Mr. Rakesh, for holding this kind of a tournament. It, as Justice Kohli has said, it really brings in a cohesiveness in all the staffs who are working in different high courts of the country. And I would only appreciate, ma'am, it's for your consideration, possibly, because as a judge, I can say we should have one match between all the staffs of all the high courts of India and all the judges of the High Court of India, possible. And surely I am looking forward for it. And the only thing in the last, I must say that the better team may win, and all the best to each of the participants, and a special best of luck to our team from Delhi. Thank you very much. स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स के दर्शकों का दिल्ली के सिविल सर्विसेज मैदान से, जहां के नवीं अखिल भारतीय टी20 लीग प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल मुकाबला मेजबान दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की टीमों के बीच खेला जा रहा है। और
टॉस जीता है मेजबान दिल्ली हाईकोर्ट की टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है, यानी पहले क्षेत्ररक्षण। और ये रोहित दिल्ली हाईकोर्ट के गेंदबाज, और वहां पर सामना किया था आमिर ने उनकी गेंद का। नवा संस्करण है जिसे आपको कहा जाए कि लीगल प्रीमियर लीग के नाम से यह प्रतियोगिता जानी जाती है, जिसमें देश भर के हाईकोर्ट की टीमें भाग लेती हैं। पहला ओवर चल रहा है, पारी का जोरदार अपील यहां पर, लेकिन गेंद निश्चित रूप से बाहर जा रही थी। अंपायर को कोई असर नहीं, लेग बाई के रूप में एक रन जरूर मिला जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की टीम को, और 2 पर पहुंचा है, 3 पर पहुंचा है इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर। शुरुआती ओवरों में रोहित ने बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया, पहला ओवर है ये रन्स बनाने का। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो दोनों बैटर हैं, बाएं हाथ के बैटर आमिर इस समय स्ट्राइक पर है। काफी अच्छा बैकलिफ है उनका, आकर्षक अंदाज में स्टांस लिया उन्होंने, लेकिन रोहित की अच्छी गेंदबाजी। और यह भी बल्ले से संपर्क नहीं हुआ लेग बाई के रूप में। और इशफाक मजीद ने खूबसूरती के साथ गेंद को कलाई के सहारे टर्न किया है, मिड विकेट बाउंड्री के पार गेंद जा रही है 4 रन के लिए। काफी अगर कहा जाए कि शानदार बल्लेबाजी पूरी इस प्रतियोगिता में रही है। अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सेमीफाइनल तक उन्होंने 243 रन बनाए थे, और इस पूरे टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर इस अखिल भारतीय प्रतियोगिता में रहे थे। और आज जबकि खिताबी मुकाबला है तो उनकी टीम को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। काफी आकर्षक बल्लेबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 9 रन तक पहुंचाया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के स्कोर को। और इस मरतबा खूबसूरत गेंद, लेकिन यहां पर मौका मिल गया रन लेने का। सीधा थ्रो स्टंप पर आया था, हल्की से अपील हुई, लेकिन यहां पर अंपायर का इशारा बाई का। तो दोहरे अंकों में पहुंच चुका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का स्कोर, और पहले ओवर की समाप्ति इसी के साथ हुई है। और नए गेंदबाज विजेंदर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। दिल्ली हाईकोर्ट जो कि इस प्रतियोगिता की मेजबान टीम है। विजेंदर नया ओवर शुरू करने के लिए तैयार, सामने है और जोरदार अपील है, और इसी के साथ आउट। तो पहली ही गेंद पर सफलता प्राप्त की विजेंदर ने। और अशफाक जो कि काफी पूरे टूर्नामेंट में अपने बैट से काफी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, पवेलियन वापस लौट रहे हैं बोझिल कदमों से। तो पहला झटका दूसरे ही ओवर में लगा है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम को, और उनके एक बहुत ही प्रतिभाशाली और ये कहा जाए कि बहुत ही ज्यादा सफल जो बल्लेबाज थे इस पूरी प्रतियोगिता में, वो पवेलियन वापस लौट रहे हैं। नववर्ष के मौके पर यह फाइनल मुकाबला आयोजित किया गया। और इस मरतबा खूबसूरत शॉट कट किया है खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, रूम मिला वहां पर उजैर को, और काफी खूबसूरती के साथ गेंद को डिस्पैच किया 4 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विजेंद्र, थोड़ा सा लंबा ओवर जरूर है।
लेकिन कोई बहुत ज्यादा मौका है, एक गेंद को अगर छोड़ करके कहा जाए तो नहीं दे रहे। नीचे रहती भी गेंद और इस मरतबा आउट। कोई हिचकिचाहट नहीं अंपायर को, और एक ही ओवर में ये दूसरी सफलता प्राप्त की है विजेंद्र ने। और इस समय मुश्किल में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की टीम इस खिताबी मुकाबले में। पवेलियन वापस लौट रहे हैं आउट होकर उजैर, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का स्कोर हो चुका है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश करके 1 रन लिया। क्या रन पूरा हुआ है ये पूछा जा रहा है लेग अंपायर से, और यहां पर आउट घोषित किया गया है चूंकि सीधा थ्रो स्टंप पे लगा था। और आमिर खान रन आउट होकर के पवेलियन वापस लौट रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी फील्डिंग का वहां पर प्रदर्शन किया था ऑफ साइड में ऋषभ ने। और ऋषभ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी को, जो कि ओपनर थे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के, उन्हें पवेलियन वापस लौटाया है। तो काफी मजबूत स्थिति में निश्चित रूप से इस समय मेजबान दिल्ली हाईकोर्ट। स्कोर इस समय है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस मर्तबा खूबसूरत शॉट है, गैप भी तलाश कर लिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे यहां पर निश्चित रूप से। तो अच्छा स्ट्रोक साकिब के बल्ले से निकलता हुआ, और इसकी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को जरूरत भी थी क्योंकि 3 उच्च क्रम यानी कि चोटी के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, और ये साझेदारी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़कर 32 पर पहुंचा है 3 विकेटों के नुकसान पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का। और चकमा देती हुई गेंद लहराती भी गई थी विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त हुआ। ओवर के बाद 35 पर 3 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा कांटा बदलती हुई। बैटर समझ रहे थे कि सीधी आएगी लेकिन बाहर निकली, कांटा बदला अपना। ओवर समाप्त हुआ। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शंकर सिंह ने पहली गेंद पर यहां पर सफलता प्राप्त की है। बिल्कुल सीधी गेंद थी और शायद साकिब के पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो चौथे विकेट का पतन यहां पर होता हुआ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का। और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे साकिब, दोहरे अंकों में पहुंच चुके थे। 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे, काफी निराश। गेंद इतनी तेजी के साथ नीचे रही कि समझ नहीं पाए वो। एक रन और मिल जाएगा। तो इसके साथ ही ओवर समाप्त हुआ शंकर सिंह का, जो कि कामयाब ओवर था उनका। इस ओवर की समाप्ति के बाद 45 पर 4 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम का। गेंद हवा में लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं रोक पाएंगे। वहां पर तेजी के साथ दौड़े थे अपनी दाहिनी तरफ, लेकिन गेंद चली गई 4 रन के लिए। शंकर सिंह एक मरतबा फिर दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान। पहला ओवर काफी शानदार डाला था। तो उनके सामने आंचल। इस मरतबा उठा के खेला है हवा में। क्या फील्डर वहां पर इस कैच को पकड़ पाएगा कि नहीं? अच्छे तरीके से गए जरूर थे, लेकिन अंतिम समय पर शारीरिक नियंत्रण गड़बड़ाया और इस कैच को गिरा दिया। ये कैच पकड़ना चाहिए था, हालांकि रनिंग कैच था, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहां पर उम्मीद की जाती थी नितिन से
कि वो कैच को पकड़ते हैं, अगर ये विकेट गिरता तो काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आंचल सिंह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शंकर सिंह ने अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी की है। फिर तबा गेंद को धकेला, थोड़ी देर के लिए हवा में रही थी, लेकिन कोई परेशानी वाली बात नहीं। छोर बदले दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने। ये जरूर है कि शंकर सिंह कोई बहुत ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं, न रूम दे रहे हैं, न फिर ऑन साइड में इस तरह की कोई गेंद कर रहे हैं जिससे पुल या हुक किया जाए, लेकिन रन्स लगातार बन रहे हैं। एक रन ही सही है, लेकिन इस मर्तबा गेंद को दिशा दे दी है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। 12वां ओवर है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की पारी का, और इस मर्तबा हवा में सीधे फील्डर के पास नितिन ने इस मर्तबा कैच पकड़ा। गेंद को पुल करने की कोशिश वहां पर जुनैद के द्वारा की गई थी, लेकिन गेंद को ज्यादा लंबाई नहीं दे पाए अपने शॉट को, और सीधे नितिन के पास। तो 5वें विकेट का पतन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का जुनैद के रूप में, और उन्होंने कुल योगदान दिया अपनी टीम के लिए। जुनैद ने, देखने से लग रहा था कि एक लंबी पारी खेलने के इरादे से उतरे हैं, लेकिन 12 रन बनाकर पवेलियन उन्हें वापस लौटना पड़ा। 5 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के। अब देखना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के कप्तान किस इरादे के साथ आए हैं। राकेश ने अच्छी गेंदबाजी का अभी तक प्रदर्शन किया है, लेकिन इस गेंद को हल्के से पुश करके अपना खाता खोला सुनील खजूरिया ने। 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद हैं। 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसकी जरूरत होती है T20 क्रिकेट में, लेकिन इस मर्तबा खूबसूरत गेंद पर खेलने के प्रयास में चूके। गेंद थोड़ी सी नीची रही थी, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। भाग्य ने साथ दिया यहां पर आंचल सिंह का, और ओवर की समाप्ति हुई इसी के साथ। तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का स्कोर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर खूबसूरत शॉट, वहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं ऋषभ लगातार सीमा रेखा पर। हालांकि काफी तेजी से गेंद रोल होकर के जा रही थी, बिल्कुल कारपेट के सहारे। काफी सुरक्षित स्ट्रोक था, लेकिन चूंकि फील्डर के पास गई, इसलिए जो मंशा थी बैटर की वो पूरी नहीं हो सकी 4 रन की। गोविंद अब आए हैं नए गेंदबाज के रूप में, गोविंद बल्लभ। सुनील खजूरिया मैदान का जायजा लेते हुए, लेकिन गेंद उनको अच्छी मिली, हल्के से पुश किया, केवल 1 रन ही यहां पर मिल पाएगा। अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है दिल्ली के सिविल सर्विसेज मैदान पर, जहां के नवा ऑल इंडिया T20 लीगल प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीमों के बीच। उठा के खेला है यहां पर, हालांकि सुरक्षित कोशिश वहां पर ऋषभ ने जरूर की थी, लेकिन इस मर्तबा असफल रहे और गेंद गई 4 रन के लिए। दूर थे फील्डर, काफी अच्छा प्रयास उनका था, और इसी के साथ शतक पूरा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की पारी का। तो 100 रन पूरे कर लिए हैं, और अब यहां से जितने रन्स वो बनाएंगे तो निश्चित रूप से तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक मजबूत लक्ष्य दिया जा सके विपक्षी टीम को। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आपको उतनी आजादी स्ट्रोक लगाने की दी जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिली नहीं है। गोविंद गेंदबाजी कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, और कप्तान का एक और खूबसूरत शॉट, वहां पर कैच लेने की कोशिश, लेकिन यहां पर शानदार छक्का लगाया गया है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के कप्तान सुनील खजूरिया की तरफ से, बल्कि आंचल सिंह की तरफ से यह शॉट था। काफी अच्छे तरीके से गेंद को रिसीव किया था, गेंद की पिच तक आए थे, पूरी तरह से सुरक्षित स्ट्रोक,
पहला छक्का। आज ऑफ साइड में सीमा रेखा के फील्डर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है दिल्ली हाईकोर्ट के, रन बचाए भी हैं। हवा में सुरक्षित सामने की तरफ, हल्की से मिसफील्ड हुई लेकिन एक ही रन से संतुष्ट। ओवर समाप्त हुआ। ओवर की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की पारी का स्कोर है 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 14 ओवर पूरे हो चुके हैं पारी के। हवा में है लेकिन सुरक्षित है पूरी तरह से, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये इस गेंद के लिए पूरा मौका था लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है। और इस मर्तबा पैड पर लगी लेकिन निश्चित रूप से बाहर जा रही थी। ओवर समाप्त हुआ। तो 111 पर 5 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की पारी का स्कोर। और इस पर दबाव उठा के खेला है, वहां पर फील्डर पहुंच चुके हैं, पहले से तैनात थे, दूसरे फील्डर भी बैकअप के लिए दौड़े थे और 2 रन इसी के साथ आसानी के साथ पूरे किए। अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा, विशेषकर इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। और इस मर्तबा गेंद को दिशा देने की कोशिश की थी और गेंद अच्छा थ्रो और ये रन आउट। एक और विकेट का पतन, और इस तरह का रन आउट होना कोई भी नहीं चाहेगा, वो भी सेट बल्लेबाज। और इस प्रकार से आंचल सिंह जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने कप्तान के साथ तालमेल गड़बड़ाया, रन आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। 38 रन बनाकर सीधा थ्रो लगा था। रोहित ने शानदार क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन किया दिल्ली हाईकोर्ट के लिए और सीधा थ्रो विकेट पर दे मारा और 38 रन बनाकर आंचल सिंह पवेलियन वापस लौट चुके हैं। और अशफाक वाणी नए बल्लेबाज आए हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। और यहां पर जोरदार अपील हुई है, अंपायर मना कर रहे हैं, लेकिन जो फील्डर्स हैं वो पूरी तरह से इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि ये आउट है, लेकिन अंपायर का फैसला अंतिम होता है। और इसकी भी जरूरत नहीं समझी कि दोनों अंपायर आपस में मंत्रणा करें, काफी कॉन्फिडेंट है अंपायर। इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली है निश्चित रूप से, अगर कहा जाए तो, जिसकी चर्चा हम क्रिकेट प्रेमियों से भी करते हुए सुना है। खेलने के प्रयास में चूके अशरफ, अच्छी गेंदबाजी जीवन की तरफ से। अशफाक बल्लेबाज है, अशफाक मानी। यहां पर एक रन जरूर मिल जाएगा। तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम का स्कोर 114 रन 6 विकेट के नुकसान पर। सत्रहवां ओवर चल रहा है, जिसकी अंतिम गेंद नितिन डालने के लिए तैयार है। और इसी के साथ बोल्ड अशफाक वाणी पवेलियन वापस लौट रहे हैं। तो एक और विकेट का पतन, 120 के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुके हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के। तो जैसे ही नितिन को मौका मिला, उन्होंने अपनी टीम को सफलता दिलाई। एक अच्छा निर्णय निश्चित रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान का, काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं।
और उनके तरकश में जितने भी तीर हैं सब इस्तेमाल किए और सब ने काफी अच्छा साथ दिया है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुनील टीम के कप्तान इस समय स्ट्राइक पर, जाफर इस समय, माफ कीजिएगा, और गेंद हवा में है, ऊंचाई है, लंबाई नहीं दे पाए, फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं था वहां पर, और ये छक्का। अच्छे तरीके से पिक किया था गेंद को, हालांकि ज्यादा लंबाई नहीं दे पाए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद सीमा रेखा के पास गेंद फंस ना जाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 130 पर पहुंच चुका है, 7 विकेट के नुकसान पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का। स्वीप करने की कोशिश असफल रहे, ओवर समाप्त हुआ। 18वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 130 रन, 7 विकेट के नुकसान पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट। करारा शॉट, एक फील्डर के पास से निकली और दूसरे के पास से भी निकली, 4 रन, और इसकी जरूरत थी यहां पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम को। एक अच्छा चौका निकलता हुआ जाफर के बल्ले से। सुनील टीम के कप्तान हैं, वो स्ट्राइक पर थे। इस मरतबा फिर हवा में खेला है लेकिन सुरक्षित है पूरी तरह से। एक रन की और बढ़ोतरी और इसी के साथ ओवर समाप्त तो हुआ। 136 पर 7, 19 ओवर की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट का स्कोर। लपेट करके खेला ऑफ साइड की गेंद को, ऑन साइड में रन्स लेना चाहते थे ज्यादा, लेकिन ज्यादा रन्स तो मिल नहीं पाए। तो रोहित को जिस रणनीति के तहत गेंदबाजी दी गई है अंतिम ओवर की, उसमें पूरी तरह अगर देखा जाए तो अब तक सफल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा रन्स नहीं खर्च किए हैं उन्होंने अंतिम ओवर में। और इसी के साथ आउट, क्लीन बोल्ड, एक और विकेट का पतन। जाफर पवेलियन वापस लौट रहे हैं। बल्ला भांजा था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद के लाइन में आए बगैर गेंद को हिट करने की कोशिश, नतीजा यह हुआ कि गेंद विकेट को जा लगी। तो रोहित पूरी तरह से सफल, जो सोच थी उनके कप्तान की उसमें। एक मरतबा फिर खेलने के प्रयास में चूके और यहां पर आउट किया गया विकेट कीपर के द्वारा, और एक और विकेट का पतन। स्कोर है 139 रन, 9 विकेट के नुकसान पर। पारी समाप्त हो चुकी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। तो दिल्ली के सिविल सर्विसेज मैदान में आयोजित नवीं ऑल इंडिया टी20 लीग प्रीमियर लीग 2022 के खिताबी मुकाबले में दिल्ली हाईकोर्ट के विरुद्ध पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने निर्धारित ओवरों में बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर 139 रन। तो 20 ओवरों में 140 रन बनाकर मैच को जीतने का लक्ष्य रखा है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, जो इस टूर्नामेंट की मेजबान भी है। तो दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है नवी ऑल इंडिया टी20 लीगल प्रीमियर लीग 2022 के फाइनल में। पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बनाए 139 रन। तो 140 रनों का लक्ष्य दिया है दिल्ली हाईकोर्ट के जीतने के लिए। तनवीर गेंदबाज, उनके सामने राकेश दिल्ली हाईकोर्ट के। पहली गेंद को हल्के से फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला उन्होंने। कोई निर्धारित 20 ओवरों में 140 रन बनाने हैं इस नवी ऑल इंडिया टी20 लीगल प्रीमियर लीग 2022 को जीतने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को।
और इस मरतबा बैकफुट पर जाके कलाई का उपयोग किया, टर्न किया गेंद को। तो रन की शुरुआत दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से हो चुकी है। खूबसूरत शॉट, गेंद दंदनाते हुए रोल करती हुई 4 रन के लिए। पुल किया गेंद को मिड विकेट के इलाके में। तो आक्रामक शुरुआत दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान की। थोड़ी सी गेंद भी लूज मिली थी, लंबाई कम थी गेंद की, और उसका फायदा उठाया यहां पर शंकर सिंह ने। एक मरतबा फिर उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पर आ नहीं पाई सही तरीके से, और 1 रन। तो ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर में तनवीर ने 6 रन खर्च किए। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। राकेश कुमार स्ट्राइक के लिए तैयार थे, अंदर आती हुई गेंद को पुश किया हल्के से। और कासिम किस गेंद को उठा के खेला है हवा में, वहां पर कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए, और कोई फील्डर तैनात भी नहीं था। खूबसूरत चौका राकेश के बल्ले से निकलता हुआ, और अच्छी शुरुआत दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से होती हुई। यहां पर 140 रनों का लक्ष्य है इस मैच और खिताब को जीतने के लिए। कासिम थोड़े से महंगे साबित होते हुए, लेकिन ये अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप पर, हल्की सी दिशा दी, रन लेने का कोई इरादा नहीं। तो 2 ओवर समाप्त हो चुका है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन दिल्ली हाईकोर्ट बिना किसी नुकसान के। पारी का तीसरा ओवर शुरू करते हुए अच्छी गेंद थी अंदर आती हुई, लेकिन यहां पर रन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 4 रन, कोशिश वहां पर जरूर की गई थी। बहुमूल्य 4 रन मिलते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को, हालांकि सही तरीके से खेल नहीं पाए थे गेंद को। काफी अनुभवी क्रिकेटर हैं दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान शंकर सिंह, एक ऑलराउंडर की भूमिका में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं इन प्रतियोगिताओं में। और इस मरतबा हवा में खेला है, गेंद जा रही है 6 रन के लिए। तो शानदार छक्का तो शंकर सिंह के बल्ले से निकलता हुआ, और अच्छी शुरुआत दिलाई है दिल्ली हाईकोर्ट के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। 140 रनों का लक्ष्य है फाइनल और टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और इरादा तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि जल्द ही मुकाबले को खत्म कर देंगे। ओहो, ये गेंद आई, ये एक टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। पहले से ही इरादा कर लिया था राकेश ने, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, और गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। महंगा ओवर यहां पर तनवीर का। किसी तरह की कोई परेशानी इन दोनों बल्लेबाजों को नहीं पेश आ रही है। मतलब स्विंग करना चाहते थे गेंद को। 1 रन आसानी के साथ। ओवर की समाप्ति, कुल योग दिल्ली हाईकोर्ट की पारी का 31 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर के बाद। कासिम एक मरतबा फिर गेंदबाजी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान को, करारा शॉट, 2 रन तो आसानी के साथ मिल जाएंगे, फील्डर बैकअप में मौजूद है। चौदह कदमों का इस्तेमाल किया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। और हवा में थी गेंद, लेकिन वहां पर
आंचल सिंह से आगे गिरी, कैच की आवाज भी आई है। वहां पर थोड़ा सा असमतल उछाल भी था जहां पर वो खड़े थे, तो स्टेप आउट नहीं कर पाए, लेकिन गेंद को 4 रन जाने से जरूर बचाया उन्होंने। ओवर की समाप्ति हो गई है। इस ओवर की समाप्ति के बाद 36 बिना किसी नुकसान के दिल्ली हाईकोर्ट, लक्ष्य है 140 रनों का। और ये सफलता प्राप्त की है ओवर की पहली ही गेंद पर, और राकेश जो कि काफी जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे, पवेलियन वापस लौट रहे हैं। और ये पहली सफलता जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट को मिलती हुई राकेश के रूप में, और ये दिलाई है आंचल ने। इस विकेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो पहले विकेट का पतन हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट के। स्कोर है 36 रन, 5.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है अभी तक। तो ये छठा ओवर, जो कि T20 में, क्रिकेट में काफी महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर कहलाता है ये, और इसमें ये सफलता अर्जित की है। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की थी, और ये दूसरी सफलता मिलती हुई आंचल सिंह को, और मैच में जबरदस्त वापसी करती हुई यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टीम, और शुक्रगुजार होगी अपने गेंदबाज आंचल सिंह का। निश्चित रूप से ये दूसरी सफलता। जितेश पहले ही इरादा कर चुके थे बाहर निकलने का, गेंदबाजी ने चतुराई दिखाई, गेंद की लंबाई को कम किया और पूरी तरह से मात खा गए उस गेंद पर। तो दूसरे विकेट का पतन हुआ है दिल्ली हाईकोर्ट के, जबकि स्कोर है इस समय 37 रन, लक्ष्य 140 रनों का मिला है। तो काफी अच्छा ओवर समाप्त हुआ आंचल सिंह का। 2 ओवर में केवल 2 रन खर्च किए उन्होंने। 2 विकेट, जो दोनों विकेटें गिरी हैं वो उनके खाते में गई हैं। कासिम का नया ओवर शुरू। थोड़ी सी हवा में डाली थी गेंद को और उसका फायदा उठाया। वो अपना छोर बदला और नितिन शर्मा के पास इस समय स्ट्राइक, जो कि नए बल्लेबाज आए हैं। अच्छे स्ट्रोक के जरिए स्ट्राइक को रोटेट किया था। व्हाइट बॉल का इशारा। जरा सा भटके आप, जरा सा चूके अपनी दिशा से, खास करके लेग साइड में, तो फिर अंपायर छोड़ते नहीं है। शंकर सिंह स्ट्राइक पर, दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान। लगातार रन लेने की कोशिश में है शंकर सिंह, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से मना किया गया। तो ओवर समाप्त तो हुआ 42 पर 2, 7 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का स्कोर, लक्ष्य है 140 रनों का। और इस मर्तबा गैप तलाश कर लिया है। एक फील्डर बैकअप में दौड़ रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे, और ये चौका। टाइमिंग भी अच्छी थी और गैप मिल गया था, ये बहुत जरूरी होता है। एक अच्छी पारी खेलते हुए दिल्ली के कप्तान शंकर सिंह। करारा शॉट है लेकिन फील्डर के पास। और यहां पर खूबसूरत शॉट है, 4 रन मिलेंगे। शर्तिया कलाई का उपयोग किया था इस मर्तबा।
लगता है ग्लांस शॉट कम देखने को मिलते हैं इस तरह के, लेकिन बहुत ही अच्छा शारीरिक संतुलन था। और यहां पर नया ओवर शुरू करते हुए इशफाक, और कप्तान ने उठा के खेला है, कैच हो सकता है यहां पर, फील्डर मौजूद लेकिन यहां पर गिरा दिया है, इस कैच को ड्रॉप किया है आंचल सिंह ने। हालांकि बहुत ही होनहार क्रिकेटर हैं, बहुत ही आसान सा कैच, और अगर शंकर सिंह जैसे बल्लेबाज जो कि पूरी तरह जमे हुए हैं, अगर उनका कैच छोड़ दिया जाता है तो ये काफी महंगा साबित हो सकता है। कैच उठाता है, एक आसान सा कैच मौका था आंचल सिंह के पास, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका। एक मरतबा फिर हवा में उठाया है, एक मरतबा फिर तनवीर के लिए मौका है इस बार, लेकिन इस घाटे को पूरा किया तनवीर ने। तनवीर अहमद ने इस कैच को पकड़ा है, और अंततोगत्वा दिल्ली हाईकोर्ट के कप्तान वापस पवेलियन लौट रहे हैं। इसी ओवर में पहली ही गेंद पर कैच छूटा था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इशफाक की कि उन्होंने लालच दी फ्लाइट से और अपनी जाल में आखिरकार फंसा लिया शंकर सिंह को। आउट हुए शंकर सिंह। खूबसूरती के साथ गेंद को स्वीप किया, गेंद जा रही 4 रन के लिए। और नितिन शर्मा के ये बहुत ही खूबसूरत शॉट था, हालांकि नीचे थी गेंद। नितिन बड़े जाबाज खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए, पिछले मैच में घायल हुए थे, चोट लगी थी, अभी भी टांके हैं, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी टीम के लिए आत्मसमर्पण एक तरह से कहा जाए, सब कुछ निछावर कर देते हैं जब क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं। तो उससे पहले पिछली गेंद पर क्या खूबसूरत चौका लगाया उन्होंने, और एक मरतबा फिर उसी तरह का शॉट हवा में, लेकिन सुरक्षित। क्या यहां पर रोका गया है कि नहीं? मिस फील्डिंग हुई है सीमा रेखा पर, रेखा और चौका, बैक टू बैक चौका यहां पर लगता हुआ। इतनी अच्छी शुरुआत की थी इस ओवर में इशफाक ने, लेकिन फील्डरों ने मायूस किया है। उन्होंने शटल बल्लेबाज को वापस भेजा था पवेलियन, लेकिन क्षेत्र रक्षण अच्छा नहीं है निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम का, और इससे गेंदबाज काफी विचलित हो जाता है। मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट टीम के। नितिन शर्मा, ऋषभ ठाकुर इस समय स्ट्राइक पर है। गेंद बैट पर आई, लेकिन सीधे फील्डर के पास। अच्छा शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद था डीप में, इसलिए जो चाहते थे वो हुआ नहीं। अगर आप शॉट लगाते हैं तो गैप तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओवर समाप्त हुआ है इसी के साथ। एक और ओवर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का कुल योग 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर उसी तरह की गेंद और लगभग उसी तरह का शॉट, फील्डर भी वही, लेकिन 1 रन फिर से मिला। और अब नितिन शर्मा स्ट्राइक पर। अंचल सिंह बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को खेला है, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। गेंद चली गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। नितिन शर्मा जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के लिए, और एक भी ऐसा समय नहीं आया जब किसी गेंद पर वो परेशान नजर आते हुए। काफी आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, और काफी अच्छा साथ उनका ऋषभ ठाकुर भी, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, देते हुए।
तो 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 95 रन, 3 विकेट के नुकसान पर दिल्ली हाईकोर्ट का स्कोर। और अब छोर फिर बदला जाएगा और जो बचे हुए 5 ओवर हैं वे दूसरे छोर से फेंके जाएंगे। तो ये 5 ओवर काफी रोमांचकारी होने वाले हैं। और बाहर के आती गेंद को छेड़ने की कोशिश की यहां पर रोहित, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और एक महत्वपूर्ण विकेट गिरा है नितिन शर्मा के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट का, जो यहां पे नहीं होना चाहिए था। शानदार पारी खेल करके वापस पवेलियन लौट रहे हैं नितिन शर्मा, और ऐसी परिस्थिति में अगर नितिन शर्मा का विकेट गिरा है तो यह कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम ने फिर से वापसी की है मजबूती के साथ इस मुकाबले में। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। लीगल प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल। जबरदस्त संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच देखने को मिला है इस फाइनल मैच में। फाइनल की तरह खेला जा रहा है। बकरारा शॉट है, गैप तलाश कर लिया, 4 रन के लिए गेंद जा रही है और रोहित ने क्या शानदार तरीके से गेंद को लगाया है। खूबसूरत शॉट जिसकी जरूरत थी दिल्ली हाईकोर्ट को, और ये 4 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट का 118 रन। 10 गेंदों पर 21 रन। रोहित स्ट्राइक पर बाहर निकले, लेकिन जिस तरह से चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। शॉट को लंबा शॉट लगाना चाहते थे, फॉलो थ्रू से साकी को आना पड़ा गेंद को फील्ड करने के लिए। गेंद वहीं पर लुढ़क कर रह गई थी, लेकिन अपना अपना छोर जरूर बदल लिया। 1 रन का और इजाफा दिल्ली हाईकोर्ट की टीम के खाते में। काफी दिलचस्प मुकाबला, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, दोनों टीमों के बीच फाइनल की तरह खेला जा रहा है। खेलने के प्रयास में चूके बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी साकिब द्वारा भी, और उस छोर से विशेषकर जो मीडियम पेसर है उनको काफी सफलता और काफी ज्यादा स्विंग भी मिल रही है। मर्दाबा अच्छा शॉट है, गैप में गया है, 4 रन के लिए गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, और कहा जाए कि बहुत मूल्यवान रन ये 4 रन दिल्ली हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से। सोनू त्यागी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जो अंतर था गेंद और रनों का उसे कम किया है इन्होंने। और अब जो नया इक्वेशन है उसके हिसाब से अभी भी 7 गेंदों पर 14 रन चाहिए। अभी भी पूरी तरह से मैच और मुकाबले में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टीम, क्योंकि हर गेंद पर 2 रन की जरूरत है दिल्ली हाईकोर्ट को। कुछ भी हो सकता है इस मैच में। मरतबा एक और अच्छा शॉट है ऑन साइड में से, मरतबा काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है, गैप में गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर पहुंच नहीं पाए। एक और चौका, तो एक और खूबसूरत और मूल्यवान चौका सोनू त्यागी के बल्ले से निकलता हुआ और अपनी टीम के काम को लगातार आसान करते हुए। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। अंतिम ओवर का रोमांच इस मैच में सर चढ़कर बोल रहा है।
तनवीर अहमद की पहली गेंद उछाल के खेला है हवा में, दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद गई 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका और लगातार रोहित ने ये शॉट लगाया था, थोड़ी सी उठती हुई गेंद थी, बल्ला अड़ाया, गैप तलाश किया, देखभाल के लगाया गया शॉट था और अब दिल्ली का काम काफी आसान हो गया है, दिल्ली हाईकोर्ट का। और क्या कमाल की बल्लेबाजी की है रोहित और सोनू ने। जब नितिन शर्मा आउट हो गए थे, इन दोनों ने रन बनाने की जिम्मेदारी बखूबी अपने कंधों पर ली। रोहित फिर तैयार और फिर उठा के मारा है, फिर गेंद जा रही है 4 रन के लिए। एक और चौका, क्या शानदार बल्लेबाजी रोहित द्वारा। पहले सोनू और उसके बाद रोहित ने चौकों की झड़ी लगाई। कमाल की बल्लेबाजी की है दबाव की परिस्थिति में। काफी मेहनत की निश्चित रूप से, काफी अच्छी गेंदबाजी भी, काफी क्षेत्र रक्षण, एक दो कैच को छोड़ के अगर बात की जाए तो काफी अच्छा मुकाबला किया यहाँ पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम ने। और खिताबी मुकाबला जिस तरह का होता है, काफी रोमांच देखने को मिला। और इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट की टीम ने शानदार तरीके से स्कोर को बराबर किया है, टाई किया है और अब केवल 1 रन की आवश्यकता है इस नवे ऑल इंडिया T20 लीगल प्रीमियर लीग 2022 के खिताब को अपने नाम करने के लिए। और क्या कमाल की बल्लेबाजी अंत में सोनू और रोहित द्वारा हुई है। हालांकि काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिला, लेकिन अंततोगत्वा बाजी मारते हुए यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की टीम तनवीर ने जो ओवर इससे पहले किया था उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सके। क्या शानदार ओवर इससे पहले किया था, लेकिन इस ओवर में उन पर दबाव आ गया था क्योंकि 6 गेंदों पर 10 रन बचाने थे उन्हें, जो कि संभव नहीं हो सका। 9 रन अब तक दे चुके हैं, केवल 1 रन और चाहिए इस खिताब को जीतने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की टीम को, जो कि इस टूर्नामेंट का मेजबान भी है। तीन गेंद पर 1 रन जीत के लिए चाहिए दिल्ली हाईकोर्ट को। और हवा में वहां पर कोई फील्डर भी नहीं है, गेंद 4 रन के लिए जाएगी। और इसी के साथ मेजबान दिल्ली हाईकोर्ट ने नवी ऑल इंडिया T20 लीगल प्रीमियर लीग 2022 का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में शिकस्त दी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम को 5 विकेटों से। नवा मुकाबला था T20 लीगल प्रीमियर लीग का, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोजित किया था और मेजबान टीम ने यह खिताबी मुकाबला जीता, फाइनल में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट की टीम को पराजित करके।